Right now we are in the middle of the Dhanbad-Kendua road. This road is of immense importance for the commuters because this is the road which connects Dhanbad to Kendua, Karkend, Kutki, Bokaro, Ranchi. This is the way, this is the road that is used by many people throughout the day. You can see through our camera that the road is closed over there. And the reason is, आप पढ़िए, सावधान ठहरिए, आगे भूधसान क्षेत्र है. That means ये signifying that the area ahead is of landslide. यहाँ भूधसान हुआ है. Let me come to the point first. Let us go back to the month of December. In the month of December, there was a gas reserve in this area where people felt uneasy. Some of the people had to be moved to a hospital where they got treated. And I think 2 or 3 people also lost their life due to this gas reserve. Now, within a span of 2 to 3 months, the same area, landslide has occurred. Now, the point of concern is that if this area is really dangerous to commute, if this area is really dangerous to move, if this area is really dangerous to live, then why we were waiting for something big to happen? Why we are not closing the roads right away? Why we are not relocating the people from here on an urgent basis? You can see through our lenses, the shops are open, the people are commuting, the people are residing over here. If this area is not safe, why we are not relocating people? If they are not going on their choice, why we are not using force to relocate them? You can see from our lenses, everywhere you can see people moving and commuting. That means people are still residing in this area. So the fact is that this is the area which is known for mining activities, and hence this area is what I call, it is very dangerous because of underground fire. You have heard the name of Jharia, which is famous throughout India for underground fire. In this area also there is underground fire, hence landslide is very common over here. So now we will try to speak with the common people. Now we will try to speak with the common people who are residing over here and listen to their stories, that why they are still living here in spite of there being so dangerous to live. Anything can happen, gas reserve can happen, land can slide, anything can happen. This is like living on the edge. So let's try and talk to the people over here. ये जो रास्ता बंद हो गई, ये कब क्या हुआ इसमें रास्ता बंद हुआ? सबसे पहले यहाँ पर गैस का निकला, गैस जो जहरीला गैस जो है, देख लीजिए पेड़ पौधा सूखा हुआ, तो गैस होते होते उस बंगला के जो कोना में पहले गोप था, और गोप के जरिए से नीचे लगता कि रास्ता है, तो वो रोड वहाँ पर बैठ गया। जब रोड बैठ गया तो ये पर बैरियर लगा। यहाँ पे प्रशासन आके आप लोग को बताइए क्या यहाँ रहना सही नहीं है, डेंजरस है, ये सब बताया गया? हाँ, ये बताया गया है। ये हम लोग जाएंगे कहाँ? ये लोग बैलगाड़ियाँ भेजने वाले हम लोग को। अब बैलगाड़ियों में वैसा शिफ्ट नहीं, कमाने खाने का वहाँ जरिया नहीं। लेकिन चाचा जान बच जाएगा तो कहीं ना कहीं तो कमा खा लीजिए। वो कहने का मतलब कि अब ये तो हम नहीं ना है, ये पूरा गाँव है, पूरा आबादी अभी भी यहीं पे है। हाँ, तो बोल रहे हैं चुप करने। आबादी सर जी यहाँ पर पूरा फंसा हुआ है। हाँ। बहुत दिन से फंसा हुआ है। आप लोग का क्या डिमांड है? हम लोग को डिमांड है कि विशेष से यही कहना है कि हम लोग को फ्लाइट मत दीजिए, पैसा मत दीजिए। आपका बहुत गैर मजरूआ जमीन है, उसी में से ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा जमीन दीजिए, आप बस्ती अपने आप खाली हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, आप तो युवा हैं, आपका हमको लगता है जन्म भी यही हुआ होगा। हमारा जन्म यही है। आप एक बात बताइए, जैसे हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग तो आए हैं, हम लोग सुन रहे हैं कि ये जो एरिया है ये अब रहने लायक नहीं है, यहाँ कभी भी भूधसान हो सकता है। गैस रिजर्व हो रहा है जिसमें दिसंबर महीना में बहुत लोग शायद बीमार हो गए थे। हाँ, 2-3 आदमी का जान भी चला गया था उस सिलसिले में। तो आप क्या सोच रहे हैं कि सरकार जो आपको रिलोकेट कर रही है, मतलब आपकी विस्थापन कर रही है, यहाँ से आपको लेके बेलघरिया शिफ्ट करा रही है ताकि आप लोग वहाँ पे अच्छे से हम लोग जाने के लिए तैयार है। लेकिन कहने का मतलब कि हम लोग कुछ सोच रहे हैं कि रोजगार भी कुछ सरकार अगर व्यवस्था कर देती है, जैसे कहने वाले बेलगड़िया तो दे रही है, तो वहाँ पर हम लोग आकर जाके क्या करेंगे? तो बेलघरिया में रोजगार सृजन भी सरकार तो कर रही है, रोजगार का ऑप्शन भी तो आपको दे रही होगी, वो तो समझाया होगा जो प्रशासन से आदमी है। रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं कर रही है, वो सिर्फ कर रही है कि 2.5 लाख रुपया आप नगद ले लीजिए और फ्लैट ले लीजिए। तो हम लोग का डिमांड यही है कि आप पैसा मत दिए, फ्लैट मत दिए, कुछ जमीन आपका ढेर गरवा जमीन है, वही जमीन खड़क दे दीजिए।
ह्यूमन पर्सपेक्टिव, एक इंसान के नाते। हाँ। कि मान लीजिए आप लोग यहाँ रह रहे हैं रह रहे हैं। और कोई बड़ी घटना घट जाती है, उस समय क्या होगा? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, ये बात तो सही बोले आप। मान लीजिए आप कुछ डिमांड कर रहे हैं, प्रशासन कुछ बोल रहा है, लेकिन ये कब क्या होने वाला है ये ना आप जानते हैं ना प्रशासन जानता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आप युवा हैं, आपके साथ आपका परिवार है, आपके साथ रहने वाले लोग हैं, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए यहाँ बस्ती में जैसे करने में लगे एक का सवाल है ना सर, लोग कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, हम लोग तो जाने के लिए तैयार है। विजिटर जो भी दे रही है ठीक है। सरकार कब तक आप लोग को जाने के लिए अल्टीमेटम दी है? अभी इसका कोई नहीं किया, खाली बस बोल रही है कि बस भेजेंगे भेजेंगे, अभी कुछ बोला नहीं है कि कब तक भेजेंगे। हाँ, वही कुछ बताएगा। आ जा जाइए। यही रखे आप लोग। ये जो एरिया पूरी भूजसान क्षेत्र है, गैस रिजर्व क्षेत्र है, यहाँ से आप लोगों को विस्थापन के लिए बोला गया है। तो आप लोग क्या सोचिए इस बारे में? पूरा एरिया भूजसान है। पूरा एरिया भूजसान है, हम लोग मान रहे हैं। इसमें गैस रिजर्व हो रहा है, कहीं जमीन धंस जा रहा है, तो आप लोग क्या सोचेंगे? जब सब जाएगा तब आप लोग जाइएगा। अच्छा एक बात बताइए, जैसे यहाँ आपने कहा ये भूजसान क्षेत्र है, ये गैस रिजर्व क्षेत्र है, होने का तो कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है। तो इंतजार कीजिएगा कुछ बनेगा कि पहले चले जाइएगा? पहले चल जाइएगा। तो आप लोग को प्रशासन बोला हुआ है यहाँ से शिफ्ट करने के लिए बेलगरिया, तो कब कर रहे हैं? ऑर्डर आएगा निकल जाएगा। जैसे ऑर्डर आएगा, मतलब प्रशासन से ऑर्डर आएगा आप लोग निकल जाएंगे। आपको चलेगा तो। सबसे पहले ये बात बताइए, आप यहाँ के नागरिक हैं? हाँ। कब से रह रहे हैं? 150 साल से बाप दादा सब यहीं रहता। सब यहीं रहा। वेरी गुड। 150 साल से आप यहाँ मतलब आप इसके डेमोग्राफी को बहुत अच्छे से समझते हैं। आप समझते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ का खतरा है। आपकी नज़र में यहाँ क्या क्या चीज़ का खतरा है? भूधसान आए दिन हो रहा है और आगे भी होगा। भूधसान तो शराब है धनबाद। क्या चीज़ का? गैस रिसाव तो 4 महीने से हो रहा है। कि पहला महीना हुआ दिसंबर में हुआ, उसके बाद फिर अभी थोड़ा कम है, लेकिन 3 महीना एकदम जिला प्रशासन को कुछ पड़ा हो ना, वो देखने आया कभी कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। आप लोगों से जिला प्रशासन की कुछ बात की? कुछ नहीं, खाली वो लोग आते हैं बोलते हैं कि आप लोग खतरा बढ़ गया, बेलगड़िया शिफ्ट हो जाइए। अच्छा, आप लोग क्या सोचते हैं? सोचना क्या, बेलगड़िया कोई कीमत पे हम लोग नहीं जाएंगे। वेरी करेक्ट। आप बेलगरिया नहीं जाएंगे, उसके पीछे का तर्क क्या है? उसके पीछे का तर्क कुछ है ही नहीं बेलगड़िया में, ना रोजगार है, ना सही ढंग का घर बना के दे रहा। यहाँ क्या रोजगार है? यहाँ सबका रोजगार है, कोई सब्जी बेच लेता है, कोई फेरी कर लेता है, कोई नौकरी कर लेता है, सब कुछ बगल में है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं? बोलिए। जैसे आप अपने शब्दों से आपने खुद कहा कि ये एरिया जो है आए दिन यहाँ भूजसान होता है, धनबाद का खिलाफ है। हाँ होगा। गैस रिजर्व पिछले 3 महीने से हो रहा है, तो यहाँ कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है। एकदम हो सकता है। तो उसका इंतजार करना है कि यहाँ से रिलोकेट विस्थापित रीलोकेट अगर आदमी बेहतर से बेहतरीन खोजता है या रीलोकेट कहीं आप अभी कोई भी मीडिया चैनल में है तो आप क्या सोचिएगा कि कहीं बड़ा मीडिया हाउस जाए कि आप कोई लोकल मीडिया में जाइएगा? तो इमरजेंसी टाइम नहीं, इमरजेंसी कैसे? इमरजेंसी 20 साल से नहीं था 20 साल का, आज इमरजेंसी हो गया। 20 साल से 20 साल का आप लोग अपना जो मांग है वो प्रशासन के पास रखें। हम लोग सब मांग रखे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रशासन का कहना मेरे पास सिर्फ बेलगाड़िया है और 2.5 लाख रुपए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और आप लोग की मांग क्या है? हम लोग का मांग क्या है? अच्छा विस्थापन दे, दूसरा केंदुआ बसा के दे, तभी हम लोग यहाँ से हैं। जैसे हम लोग अभी स्टडी कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे GRDA के ऊपर, वहाँ पे बताया जा रहा है कि बेलगरिया में रोजगार सृजन के लिए भी बहुत सारे प्लान चलाए जा रहे हैं। क्या जैसे आपको बताया गया? जैसे क्या? टोटो चलाना, जैसे वहाँ पे फिशिंग कल्टीवेशन किया जा रहा है ताकि लोगों को रोजगार सृजन हो सके। बहुत सारा चीज़ों पे अभी वहाँ पे रिसर्च करके वो लोग काम कर रहे हैं ताकि जो लोगों को यहाँ से रिलोकेट किया जाएगा, विस्थापित किया जाएगा, उनको रोजगार मिल सके। क्या जो आप बता रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन वहाँ हो चुका है कि भविष्य में होगा? आप लोग कभी बेलगरिया जाके देखिए जगह कैसा है? 10 बार गए हम बेलगड़िया। क्या आपने जगह ड्रॉबैक क्या लग रहा है? कुछ है ही नहीं बेलगड़िया में, कस के हाथ से मार दीजिएगा तो क्वार्टर टूट रहा, प्लास्टर छोड़ रहा। ऑलरेडी 20-25 साल पहले का बना हुआ है, वो 99 साल का लीज में दे रहा, 20-25 साल का आप तो लोग बना का कहना है कि जब तक विस्थापन आपके शर्तों पे नहीं होगी तब तक यहाँ से लोग देखिए यहाँ विस्थापित नहीं होंगे। शर्त का कोई सवाल नहीं। हमारा कहना साफ है कि विस्थापन का मतलब हमको अच्छा जगह दिया जाए,
रोजगार से हमको जोड़ा जाए, एक अच्छा जगह दिया जाए। आप बेलगड़िया की बात करें, बेलगड़िया में रहने लायक क्या ऐसा है? आपका कहना है विस्थापन विद चॉइस, नॉट विस्थापन विद फोर्स। हाँ, विद फोर्स विस्थापन होगा ही विस्थापन नहीं होगा, नहीं होगा। विद चॉइस विस्थापन हाँ, होगा। मतलब आपका बात सुन के समझ के एक सेटलमेंट पे आके तब विस्थापन होगा। बाई फोर्स यहाँ पे नहीं, बाई फोर्स कोई विस्थापन नहीं करा सकता। नहीं करा सकता। कैसे बाई फोर्स? आप लोग यहाँ कहाँ रहते हैं? बस ये क्या सामने है? तो वहाँ अभी लगभग कितने परिवार रहते होंगे? पूरा मिला लीजिएगा एरिया तो कम से कम 400 घर हैं यहाँ पे अभी प्रभावित, गैस से प्रभावित। और इससे राइट नाउ वी आर स्पीकिंग विद द रेसिडेंट ऑफ इस एरिया का नाम क्या हो गया? केंदुआडी। केंदुआडी। You can listen to their things that they are saying that they will relocate with their choice. They will not be relocated by force. यहाँ पे 400 घर हैं। 400 घर का मतलब होता है अगर एक घर में आप 4 आदमी पे पकड़ते हैं तो 1600 लोग। That means 1600 people are residing in danger. Anything can happen anytime. There is gas reserve, there is landslide, there is underground fire, anything can happen. But the people over here are saying one simple thing, that we are ready to relocate. But first of all, we need some assurance on the front of employment. We need assurance on the front of revenue generation. इनका मांग है कि हम लोगों को सबसे पहले रोजगार से जोड़ा जाए। जब हम लोग के पास कुछ रोजगार होगा तभी तो हम लोग यहाँ छोड़ के वहाँ जाएंगे। इनका कहना था कि मुझे दूसरा केंदुआडी बसा के दीजिए, हम लोग यहाँ से सारे लोग दूसरे जगह पे रिलोकेट होने के लिए तैयार हैं। आप यही बोल रहे थे ना? दूसरा केंदुआ बसा के देना। रीलोकेट का मतलब अगर उसके नज़र में बेलगड़िया है तो हमको किसी कीमत पे अभी बेलगड़िया जैसे नहीं। यहाँ पे घुसान हुआ, अभी प्रशासन आया होगा। हाँ, आप लोगों से बातचीत हुई होगी। हाँ। क्या हुई बात? कुछ नहीं आया, बैरिकेड कर दिया और बोला इमरजेंसी, अब आप लोग खाली करके बेलगड़िया चले गए। कोई बात तो ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ से जाना, सिर्फ बेलगड़िया जाना। इस बार डीसी साहब और एसएसपी साहब आए हैं, कोई वार्तालाप नहीं किए, अपना थाना में आए हैं। अंदर रूम में सीएमडी साहब भी आए, सब लोग अंदर में क्या बात किए नहीं किए, आम पब्लिक को किसी को जानकारी कुछ नहीं है। बस बाहर निकलने के बाद एक ही स्टेटमेंट दिए कि आप लोग यहाँ से जितना जल्दी बेलगड़िया शिफ्ट होंगे। इसके अलावा प्रशासनिक से कोई भी बातचीत नहीं हुआ, ना सीएमडी से। भूत हसान आप होने लोग के क्या बाद सोच रहे हैं? हम लोग क्या सोचना है, यहाँ तो हम लोग सबसे सोच रहे हैं कि सबसे पहले ये जो रोड एनएच जो है बाधित हुआ है, ये कलकत्ता टू रांची है, एनएच है, ये रोड को पहले चालू कराया जाए। मैंने अभी बोला वो चीज़। हाँ, पूरा धनबाद जो है इससे बाधित हो गया। ये खाली यहाँ का मामला नहीं रह गया है, पूरा धनबाद यहाँ का बाधित हो गया है। पहले रोड को चालू करवाइए, पहले समस्या को देखिए कि कहाँ भूत आसान है। अच्छा, यहाँ पे अंडरग्राउंड फायर की स्थिति क्या है? जैसे अभी बारिश की मौसम आने वाली है 2-4 महीने में, कैसा रहता है यहाँ पे? ये जब बारिश होती है तो खतरनाक समस्या आ ही जाती है, इससे दो मत नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है कि जो यहाँ आदमी पहले से बसा हुआ है, रोजगार है, यहाँ सबका रोजगार है, रोजगार मेन मुद्दा है। मैंने आप लोग का कहना है कि रिलोकेशन में सबसे बड़ी जो बाधा है वो है रोजगार। हाँ, रोजगार। मैंने आपको अगर कहीं पे भी भेज दिया जाए जहाँ पे रोजगार है तो आप जाने के लिए तैयार हैं। हाँ, रोजगार। मैंने मकान इज नॉट इम्पोर्टेंट, द इम्पोर्टेंट फैक्टर इज एम्प्लॉयमेंट। पहले भी आज ये 5 महीने 6 महीने से समस्या चल रही है। पहले भी यहाँ से 2 गाड़ी बीसीसीएल के अधिकारियों ने भेजा था यहाँ से देखने के लिए लोगों को, लेकिन वहाँ जाने के बाद सब कुछ साफ पता चला कि वहाँ जाने के बाद जो राशि है, ये 2.5 लाख रुपया राशि बीसीसीएल के थ्रू दिया, डीसी साहब के थ्रू दिया जा रहा है, जेआरडीए के थ्रू दिया जा रहा है। वो राशि पहले 50,000 दिया जाता है, बाकी बात लोगों ने जाके देखा ये बात, फिर उसके बाद नहीं दिया जाता है। उसके बाद फिर वहाँ रहने का जो समस्या है, उसको वहाँ का सीमेंट का जर्जर हालत है, वहाँ का नहीं, वो जो जर्जर हालत है उसे तो मान लीजिए ठीक कराया जा सकता है, वो फैक्टर नहीं है। फैक्टर आप लोगों का मांग है कि आप लोगों को रोजगार चाहिए। अब मानिए जर्जर स्थिति है, वो तो आप बना सकते हैं, सरकार भी बना सकती है। नहीं, जर्जर स्थिति की बात कैसे? आज आप बोल रहे, देखिए आज अगर आप जर्जर स्थिति को इग्नोर कर रहे हैं तो शायद इसमें हम कल या परसों अंदर जाके मरे। ऐसा ना हो कि वहाँ बिल्डिंग में जाए, पूरा बिल्डिंग वहाँ सबसे पहले तो है ना, वो तैयार होगा तभी तो आप शिफ्ट करिएगा। अब दरवाजा नहीं है, खिड़की नहीं, आप कैसे रहिए? नहीं, ऑलरेडी तैयार है 14,000 क्वार्टर जबरदस्ती थोपने के लिए, वो ऑलरेडी तैयार है जबरदस्ती थोपने के लिए। कितना तो आप लोग अपना मांग लेके कभी प्रशासन से मिले एक हैं? बात और हम बोलना चाहेंगे, बात समझिए। हम बोलना चाहेंगे कि 6 महीना हो गया ये जो हालत है यहाँ का दुर्दशा है, कि 6 महीना में बीसीसीएल के सीएमडी साहब और यहाँ के जो ये पीएम साहब हैं, क्या ठोस कदम उठाए, हम उनसे ये पूछना चाहेंगे। 6 महीने के दरमियान में अभी तक एक भी आदमी, अगर उनको भेजना ही था तो एक भी आदमी को काहे नहीं भेज कर दिखा दिया है, या चले काहे नहीं गए 6 महीना में। और डाटा के अकॉर्डिंग आपको एक बात और बता रहे हैं, डाटा के हिसाब से बेलगड़िया में 15,000 क्वार्टर बना है, और परिवार के हिसाब से जो बीसीसीएल के पास डाटा है, जो जेआरडीए के हिसाब से 1400 परिवार वहाँ है।
यानी ये लोग 10% लोग को भी मना के वहाँ ले जा नहीं पा रहे हैं। चलिए हम गलत हो सकते हैं, ये गलत हो सकते हैं, आखिर उतना परिवार गलत कैसे है? सिर्फ 10% लोग ये लोग वहाँ नहीं बसा पाए हैं, एक तो बात रहने और लायक जगह ही नहीं है। हम अनुरोध करते हैं यहाँ के माननीयों से, सिर्फ जब इलेक्शन आता है उस समय आएंगे कि हम आपका बेटा है, हम आपका गरीब का बेटा है, हम आपका ये है, वोट मांगने के लिए। अभी इतना बड़ा समस्या उत्पन्न हुआ है, ना अभी तक ठोस कदम किसी माननीय ने उठाया है और ना कोई माननीय ठोस कदम के साथ हम लोगों के साथ आगे बैठे हैं। आने जाने का हम लोग मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग देखते हैं या बैठे रहते हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा माननीय ये ठोस कदम नहीं। समूची जो यहाँ के बस्ती है, यहाँ का बस्ती जो प्रभावित है, उन लोगों से ठोस हम लोग चाहते हैं कि सारे लोगों को बुला करके, क्षेत्र के अगल बगल के सारे आदमी को बुला करके एक जगह आप बैठक हो, बैठक में जहाँ कोई बढ़िया निष्कर्ष निकले, हम यही चाहते हैं। लेकिन अभी तक वैसा कोई आप बोले ना जान माल का खतरा, जान माल का खतरा का आप बात किए ना, दिसंबर में ये कांड हुआ जिसमें 3 लोग मर गए, 100 से ज़्यादा लोग बीमार हुए। उसके बाद हुआ नगर निगम का इलेक्शन। सोचिए हम लोग कितना ये लोग के लिए वैल्यूबल हैं, क्या है ये आप समझ सकते हैं। 3 महीना 4 महीना तक कोई हम लोगों के पास पूछने के लिए भी नहीं आया। क्या ये घटना उस वक्त नहीं हो सकती थी? इन लोगों के लिए इलेक्शन जरूरी वेरी था। सीरियस एलिगेशन और by the people of हम Kendwadi. एक बात और बोलेंगे। They are simply saying one thing, that none of the MLAs have come to take any step MP. over here. Not even MP has arrived over here, and they are saying that the BCCL CMD or the administration of JRDA, none have come with them to have a dialogue with the people over here, so that they could come to a settlement, so that the people can be relocated here, so to some places. Okay, so the fact is that these people are open for dialogue, but their main complaint is that none of the authorities have arrived here to have a communication with them. आप लोग यही बोल रहे हैं ना कि किसी भी अधिकारी आके आप लोग से कोई बातचीत नहीं की है, कोई नहीं, और और लोगों का पक्ष किसी ने सुना ही नहीं सुना। बीसीसीएल के जो अधिकारी आते हैं उन लोगों का सिर्फ एक ही कहना है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। अरे जाने के लिए आदमी रेडी है, लेकिन आप मूलभूत जो मूलभूत सुविधा से वंचित सुविधा है वो आप सुविधा दीजिए ना, आदमी जाने के लिए ऑटोमेटिक रेडी है। आप लोग कभी यहाँ से अपना एक ग्रुप बना के समूह बना के बीसीसीएल सीएमडी से मिलने गए? हम लोग बीसीसीएल सीएमडी के पास गए, मुख्य सचिव यहाँ के जो झारखंड के मुख्य सचिव वो भी आए थे, सीएमडी साहब भी आए थे, कोयला मंत्री धनबाद तक आए थे, उनको यहाँ तक नहीं आने दिया गया। मैंने कोई निष्कर्ष नहीं, कोयला मंत्री साहब आए थे लेकिन यहाँ तक उनको नहीं पहुँचने दिया गया। अब किस कारण नहीं पहुँचे ये नहीं हम लोग को मालूम, पिछले बार आए थे। और दूसरी बात कि अगर यहाँ पे बीसीसीएल के अधिकारी लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पे सब अवैध है, तो अवैध आदमी से वोट क्यों मांगा जाता है? वोट भी अवैध है और वोट के द्वारा जो बनते हैं नेता लोग वो भी अवैध है। तो ये कहीं बोला जाए कि अवैध है, यहाँ 50 साल से 100 साल से 150 साल से सब अवैध कैसे? तो सारा अवैध बीसीसीएल है। अवैध और आप नहीं लोग कुछ बोलना चाहिए। हम लोग का जो भैया बोल रहे हैं सही बोल रहा है। आप क्या करते हैं? आपको हम नगर निगम काम करते हैं, नगर निगम में काम करते हैं, रोज आना जाना करते रोजाना हैं। आप अभी ऑन ड्यूटी हैं? आगे ड्यूटी पर हम। ये लोग मजाक बना दिया, बीसीसीएल पूरा मजाक बना के रखा है। और अगर जिला प्रशासन को ऐसा होता ना कि हाँ नहीं ये लोग का सेफ्टी को प्रायोरिटी दिया जाता तो 3 महीना वो लोग इलेक्शन में बर्बाद नहीं करता, पहले लोगों का जान बचाता। लेकिन हम लोग सिर्फ सबका बात कर रहे हैं, सबके लिए हम लोग सिर्फ वोट बैंक बन के रह गए, सिर्फ वोट बैंक आए, वोट मारे, बात करें। वोट को प्रायोरिटी दिया गया लेकिन हम लोग को शिफ्टिंग को प्रायोरिटी नहीं दिया गया। और ये जो भूत हसान है ना पूरा धनबाद में होता है, लेकिन आज ये रोड बाधित है, क्यों नहीं इसका सोल्यूशन निकाला जा रहा कि नहीं तत्काल में रोड चालू किया जाए? कुछ नहीं, बैरिकेटिंग हुआ उसके बाद से बताया ना कौन अधिकारी आके बताया है कि रोड कैसे चालू होगा। हम लोग सिर्फ और सिर्फ सबके लिए वोट बैंक है, चाहे कोई भी रहे। अभी तक में कम से कम क्या अच्छा वोट करना चाहिए। 5-6 दिन हो गया कोई नहीं, बहुत दिन से रह रहे हैं, 40-50 साल हो गया। 5-6 दिन हो गया, 6 दिन 10 दिन होने वाला, सब डिसाइड नहीं होगा तब तक नहीं हो जाएगा। गया। लाल झंडा आपने तो कोई जाएगा सर, आप ही बताइए, आपने तो कोई जाएगा ना। बीसीसीएल प्रबंधक जब तक हम लोग को सुविधा नहीं देंगे तब तक कैसे हम लोग हटेंगे? क्योंकि आप लोग ने वो बात कहा, हम लोग कोशिश करेंगे आपका बातों को लेके बीसीसीएल सीएमडी से मिलने के, देखते हैं उनका एकदम जरूर कीजिए, जल्द से जल्द कोई कार्रवाई होना चाहिए। सीएमडी साहब से जाके जरूर बोलिएगा कि लोकल पर्सन से आप मिलते हैं। सीएमडी साहब से मेरा 1-to-1 एक बार बहस हुआ है, उनको जब हम मिलने बोले तो बोलता है आ रहे हैं और उधर ही से भाग गए। नहीं, अभी 2-3 दिन पहले आए थे, सीएमडी साहब आए थे, डीसी साहब आए थे, एसएसपी साहब भी आए थे और डीएसपी साहब भी, सारे लोग थे। तो वो लोग आए, कम से कम दोनों तरफ आंख में टकटकी लगा के गरीब लोग,
गरीब गुरबा जितना आदमी रोड के किनारे खड़ा था कि ये लोग आए हैं, कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलेगा। पता नहीं, ये लोग अंदर गए, अंदर में बैठक किए, बैठक के माध्यम से हम लोगों को कुछ जानकारी नहीं मिला, लेकिन हम लोग को प्रेस के माध्यम से जानकारी मिला कि ये लोग सिर्फ यही बोले कि यहाँ से आप लोग जल्दी से जल्दी हट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। खतरा तो हम लोग बचपन से देख रहे हैं, बगल में माइंस चल रहा है, वहाँ माइंस चल रहा है, वहाँ माइंस चल रहा है, वहाँ माइंस चल रहा है, ये भी तो खतरा है। ब्लास्टिंग होता है, ये भी तो खतरा है। आखिर ये सब क्यों नहीं बोलते हैं कि ब्लास्टिंग हो रहा है उसको कम करवाया जाए, आग निकल रहा है, माइंस कोड़ाया जा रहा है। घर वगैरह दिख रहा है, वहाँ पे लोग रहते हैं। हाँ, सारे लोग पूरा चारों तरफ माइंस है, उसके विषय में कोई नहीं बोलता है। जब ब्लास्टिंग होता होगा तब तो पूरा हाँ, हम लोग बचपन से देख रहे हैं, ये बचपन से शुरू से देख रहे हैं, बचपन से हम लोग ब्लास्टिंग झेल रहे हैं, ब्लास्टिंग होता है, सब कुछ देख रहे हैं। उस पर अभी तक कोई बात नहीं हुआ, बस थोड़ा सा क्या मान लीजिए, ये बहुत बड़ा एक NH का मतलब धसना बहुत बड़ा चीज है, लेकिन ये जानकारी इसको जानबूझ के धसाया गया, ये चीज़ जान लीजिए। नाइट्रोजन वहाँ जरूरत से ज़्यादा फिलिंग किया गया, जिसके वजह से आग कम पड़ा और आग कम पड़ने के बाद धस गया। आखिर वो दूसरी जगह नाइट्रोजन काहे नहीं फिल गया, खाली वहीं पे क्यों किया? ये लोग के लिए और ऐसा नहीं है कि जहाँ जहाँ गैस प्रभावित है बस यही क्षेत्र प्रभावित है। पूरा केंदुआ 10,000 12,000 लोग प्रभावित है। अगर इस चीज को अगर सुनवाई नहीं होगा तो सारे लोग रोड पर उतर कर आंदोलन करेंगे। See, the point is very clear over here. The people are saying that if the government is not, if the district is not paying attention to their demand, they are prepared for a mass struggle. And so we request from our channel that the administration should come, visit the place, talk to the people, listen to their demand and come to a settlement so that these people can be relocated to a safer place, because living here means living on the edge, playing with life. यहाँ रहना और जिंदगी से जंग लड़ना दोनों बात बराबर है। धन्यवाद।